Hi guys, good morning. We are here to discuss one more topic, and the topic for today is data structure, which is very important for class 12th. This is the most probably the last topic of Python in computer science for class 12th, and here we will learn that what is data structure, why we use data structure in Python, what are the advantages or what are the disadvantages of data structure which we can use in Python. Here, first of all, we will discuss what is data structure and how many type of data structure we have and which type of operations we can apply on data structure. Let's move for the topic, and the topic for the day is, first of all, we have data structure. What is data structure? Data structure हमारा क्या है? This is the fundamental concept of computer science which help in writing efficient program in any language. As we know that Python is a high level, interpreted, interactive and object oriented scripting language which we can study the fundamental of data structure in a simpler way as compared to other programming language. अभी जैसे हमने पहले पढ़ा है कि हमारे पास जो डाटा टाइप है, वो जो डाटा स्ट्रक्चर है वो बेसिकली हमारा दो प्रकार का होता है. एक आपका होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव. जो प्रिमिटिव है इट इज आल्सो नोन एज फंडामेंटल डाटा टाइप और फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वी हैव द नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर. नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू लीनियर एंड नॉन लीनियर data structure, in which in linear we have static and dynamic data structure, in which in static we have array. Static, first of all, linear data structure is such kind of data structure where we have the size of the element are already described, but in non-linear data structure we didn't have the exact size of the elements. It will be decided during the runtime. Here we have a linear in which we have static and dynamic. Static array is the static type where linked list, stack and queue are dynamic data structure. On the other hand, in the non-linear we have tree and graph. This is the data structure. Here first of all we will discuss about linear data structure. Linear data structure. A linear data structure is a kind of data structure which store the data element, in a sequential manner. यानी कि जो हमारे डाटा के जो एलिमेंट होंगे वो हमारे एक सीक्वेंस टाइप में चलेंगे. एक सीक्वेंस टाइप में आपका स्टोर होगा, मीन्स देयर इज नो स्पेस विल बी लेफ्ट ब्लैंक ड्यूरिंग देयर रिप्रेजेंटेशन इन द मेमोरी. On the other hand, we have non-linear data structure in which there is no sequential linking of a data. Sequential linking का मतलब है कि आपके पास मान लो दो ऑब्जेक्ट है, तो यदि मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो इसके आगे ये जुड़ेगा, इसके आगे फिर अगले वाला ऑब्जेक्ट जुड़ेगा, फिर अगले वाला जुड़ेगा, मीन्स नो ब्लैंक स्पेस विल बी लेफ्ट, और वी कैन से दैट नो इंडेक्स विल बी लेफ्ट ब्लैंक between the linear data structure. And array is such type of data structure which is categorized under linear. Stack and queue is also the example of linear data structure. Any pair or group of data element can be linked to each other and can be accessed without a strict sequence. अब क्योंकि नॉन लीनियर जो डाटा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनकी हमारी कोई सीक्वेंस नहीं होती. इसका मतलब कि कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी जुड़ सकता है और कहीं पे भी उसको हम एक्सेस कर सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्या रखना, हमने ध्यान रखना उसका हाउ वी कैन एक्सेस इट. अब
जो हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एरे। एरे हमारा क्या है कि सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है डाटा की, डाटा एलिमेंट्स की, जो हमारा पेयर्ड होगा किसके साथ, इंडेक्स ऑफ द डाटा एलिमेंट। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे ब्रीफली। इसके बाद लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है हमारा, डाटा एलिमेंट कंटेन ए लिंक टू अनदर एलिमेंट विद द डाटा प्रेजेंट इन इट, यानी कि जो डाटा आपका प्रेजेंट है उस लिस्ट के अंदर वो अगले को आपका हिंट करेगा, आपको वो बताएगा कि ये जो डाटा है आपका, जो डाटा एलिमेंट है ये कौन से एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारी ट्रेन होती है, फिर ट्रेन में क्या है, एक जो आपका कंपार्टमेंट होता है दैट इज अटैच्ड विद द अदर, नेक्स्ट वन अटैच्ड विद द नेक्स्ट कंपार्टमेंट एंड सो ऑन। तो ये हमारा जो है, ये जो एग्जांपल है ये आपका एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का होता है, और जो हमारा एलिमेंट आगे वाला जुड़ा होगा उसका एक एड्रेस होगा और वो एड्रेस पीछे वाले को शो करेगा। इसके बाद हमारी स्टैक। स्टैक हमारी क्या होती है, स्टैक भी हमारे क्या है, डाटा स्ट्रक्चर है जो हमारा फॉलो करता है एक ऑर्डर को, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब क्या है कि स्टैक हमारी एक वो लिंक लिस्ट होती है जिसका एक एंड होगा। मतलब सपोज करो कि मेरे पास यहां पे एक ये बॉक्स है और ये इसका एक एंड है जहां से मैं आइटम को इंसर्ट भी कर रहा हूं और जहां से हम आइटम को बाहर भी निकालने हैं, यानी कि वन एंड फ्रॉम वेयर इंसर्शन एंड डिलीशन कैन टेक प्लेस। अब क्योंकि एक ही एंड हमारा है, अब इसके अंदर जो एलिमेंट पहले आएगा वो सबसे बाद में निकलेगा और जो एलिमेंट सबसे बाद में आया है वो सबसे पहले निकलेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं लीफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि द एलिमेंट विच इज इंसर्टेड फर्स्ट दैट विल बी द एलिमेंट which can be deleted after the deletion of all element. Next we have queue. Queue is also like stack, but the difference is that a queue has two end. From one end insertion will be take place and from the other end deletion will be टेक प्लेस। इनके इंसर्शन और डिलीशन के लिए हमारे अलग अलग एंड होंगे और अलग अलग एंड से हमारा इंसर्शन और डिलीशन होगा। इस वजह से ये जो टेक्निक अडॉप्ट करती है वो आपका अडॉप्ट करती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एलिमेंट आपका पहले आएगा वही एलिमेंट पहले जाएगा। सपोज करो कि मेरे पास एक ये लिस्ट है जिसमें इस साइड से सपोज करो कि आपका इंसर्शन हो रहा है और इस साइड से आपका डिलीशन हो रहा है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट पहले चला जाएगा वो हमारा पहले डिलीट होगा, डिलीट हो जाएगा, और जो एलिमेंट बाद में आएगा वो एलिमेंट आपका बाद में डिलीट होगा। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं इट इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आफ्टर दैट वी हैव अ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, दैट इज टू डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर में इसके दो डायमेंशन हो गए जो हमारा जिसके बेस पे काम करेगा, इन विच द डाटा एलिमेंट इज रेफर्ड एज ए पेयर ऑफ इंडिसेस। अब इंडिसेस क्या होती है, अपने डाटा एलिमेंट को स्टोर करने के लिए जो हमारा स्पेस होता है, जो इंडेक्स हमारा होता है, दैट इज नोन एज इंडिसेस। नेक्स्ट वी हैव ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, देन वी हैव नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, दीज आर द डाटा स्ट्रक्चर in which there is no sequence, there is no sequence, in the element of such type of data structure can be connected with any elements, there is no particular order defined, linking of data element, any pair or group of data, any pair or group of data elements can be linked to each other and can be accessed without a स्ट्रिक्ट सीक्वेंस, यानी कि हमारे हम किसी भी एलिमेंट को हम लिंक कर सकते हैं और उसको हम कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए हमारा कोई भी एक स्ट्रिक्ट सीक्वेंस नहीं होती। इसके बाद आपका है, अब जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले आता है हमारा बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री हमारा एक नॉन लीनियर टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है और इसमें क्या होता है, a data structure where each data element can be connected to a maximum two other data element and it start with a root node। सपोज करो कि मेरे यहाँ पे एक ये नोड है
और इस नोड से दो नोड मेरे जुड़े हुए हैं। एक मेरा नोड है, इस नोड से दो नोड मेरे जुड़े हुए हैं। अब यदि इस तरीके से मेरे नोड जुड़े होते हैं, यानी कि एक नोड के यदि दो सब नोड है, इफ ए सिंगल नोड हैव टू सब नोड देन इट इज नोन एज बाइनरी ट्री। और इसमें जो हमारा मेन होता है, ये वाला जो नोड होता है, इसको बोलते हैं हम रूट नोड। और जो ये नोड होते हैं हमारे, दीज आर नोन एज लीव्स। और इसमें हमारा एक हमारा लेफ्ट लीव होता है और एक हमारा राइट लीव होगा। अब इस ट्री को बाइनरी ट्री बनाने के लिए इट इज कंपल्सरी दैट ईच नोड हैव टू सब नोड। इफ इट इज a two sub node then it is called a binary tree. Data where the data in the parent node is either strictly greater than equal to the child node or strictly less than its child node. अब ये कह रहे हैं, अब यहाँ पे जो ये मेन नोड है, इसको हमने रूट नोड बोला है। रूट नोड also we can call it a parent node, sub node और leaves node also we can call it a child node. अब ये कह रहा है कि जो डाटा है हमारा किसी के अंदर, पेरेंट नोड के अंदर जो डाटा होगा वो हमारा क्या हो सकता है, वो ग्रेटर देन हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है किसके, चाइल्ड नोड के। सपोज करो कि मेरे यहाँ पे जो नोड था, इसका डाटा मान लो 4 है, तो इसका डाटा हमारा 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हमारा वो हो सकता है, बट इट मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द चाइल्ड नोड और इट में आल्सो बी लेस। ये हमारा कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। वहां पे हमारी कोई एक पर्टिकुलर रूल नहीं है कि डाटा हमारा ज्यादा ही होगा या उससे कम ही होगा। चलिए आगे हमारे पास होता है हीप। हीप होता है हमारा एक जस्ट लाइक ए बंडल, वेयर इन स्पेशल केस ऑफ ट्री डाटा स्ट्रक्चर it is a special case of tree data structure where the data in the parent node is either strictly greater than or equal to the child node. Already I have discussed in the particular example. Now I have a hash table. It is a data structure which is made of arrays. Hash table क्या हमारा, made of arrays associated with each other using a hash function. It retrieve values using keys rather than index from a data element. और जो डिक्शनरी हमारा है, डिक्शनरी जैसे अपने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, डिक्शनरी के अंदर हमारा जो डाटा एलिमेंट होते हैं, हमारी डाटा वैल्यूज होती है। यदि आपने डाटा वैल्यूज को एक्सेस करना है तो उसकी की वैल्यू को हमने कॉल करना पड़ेगा। विद द वैल्यू ऑफ की वी कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट। मीन्स हैश टेबल जो है, इनके डिक्शनरी जो है हमारी, वो एक हैश टेबल का एग्जांपल आप कह सकते हो। इसके बाद मेरे पास ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्टेक्स। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे मेरे पास यहां पे होता है कि ये मेरे पास है। अब इसमें क्या होता है हमारा, इसमें वर्टेक्स होंगे एंड नोड वेयर सम ऑफ द नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जैसे हमारा यहाँ पे है कि ये नोड यहाँ पे है, नोड ये पे, ये आपस में जुड़ा हुआ है। अब ये मेरा वर्टेक्स है और ये मेरे नोड है। टू ईच अदर थ्रो ए लिंक। अब इनको इनमें बीच में जोड़ा है। इसके बाद हमारा पाइथन स्पेसिफिक डाटा स्ट्रक्चर। ये तो ना हमारा एक नॉर्मल डाटा स्ट्रक्चर जो हम यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारा जो पाइथन है, पाइथन का जो स्पेसिफिक डाटा स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब पाइथन में क्या होता है, these data structures are specific to Python language and they give greater flexibility in storing different type of data and faster processing in Python environment। यानी कि हमारा जो ये Python लैंग्वेज है, Python लैंग्वेज के अंदर हमारी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है किसको, स्टोरिंग की, किसके, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा एंड वी कैन इजिली और फास्टली एक्सेस द डाटा। नाउ वी हैव a list is a kind of data structure. It is similar to array
with the exception that the data element can be of different data type. हमने पढ़ा है कि जो लिस्ट होती है वो हमारी एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होती है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, जबकि एरे जो होता है एरे हमारा एक वो डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सिमिलर टाइप के डाटा एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस यही है कि लिस्ट और एरे। अब लिस्ट में हमारे एलिमेंट डिफरेंट टाइप के होंगे जबकि एरे में हमारे कॉमन टाइप के होंगे। दूसरा हमारा है, इसी में है यू कैन हैव बोथ न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग डाटा इन ए पाइथन लिस्ट। दूसरा हमारा है टपल्स। टपल्स क्या होते हैं? टपल हमारे लिस्ट की तरह होते हैं बट दीज आर इम्यूटेबल इन नेचर। इन इम्यूटेबल का मतलब होता है वी कैन नॉट चेंज मीन्स डिलीट अपडेट द वैल्यूज ऑफ ए पर्टिकुलर टपल्स। These are mutable, which means the values in a tuple cannot be modified or they can only be read only. अब इसमें हमारा एक था डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है? ये कंटेन करता है हमारा की को और उसकी वैल्यूज को, जो हमारे डाटा एलिमेंट्स होते हैं उनको पेयर्स में आपका कंटेन करेगा। ध्यान रखना है कि लिस्ट हमेशा आपकी ब्रैकेट के अंदर होगी, टपल्स हमारे पैरेंथेसिस में होंगे और डिक्शनरी आपकी कर्ली ब्रेस के द्वारा बनाई जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है कि एक तो एरे है, एक मेरा लिंक लिस्ट है, एक स्टैक है और एक क्यू है। इनको हम पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका एरे। एरे क्या है? एरे हमारा एक डाटा स्ट्रक्चर है विच कैन बी यूज टू स्टोर होमोजेनियस एलिमेंट्स। ध्यान रखिए यहां पे जो लिस्ट थी हमारी, उस लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, बट जो एरे होता है एरे के अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक आपका सेम टाइप का होमोजीनियस टाइप का जो एलिमेंट है उनको ही हम स्टोर कर सकते हैं। या तो वो सारा इंटीजर हो सकता है या सारा हमारा वो स्ट्रिंग हो सकता है। एट कॉन्टिन्यूअस लोकेशन, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि जो एलिमेंट स्टोर होंगे वो हमारे कॉन्टिन्यूअस वे में जाएंगे, बीच में हमारा कोई भी स्पेस वैकेंट या ब्लैंक आपका नहीं होगा। साइज ऑफ एन एरे मस्ट बी प्रोवाइडेड बिफोर स्टोरिंग डाटा। अभी हमने बताया था कि जो हमारा एरे होता है वो एक स्टैटिक टाइप का डाटा एलिमेंट होता है, एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम डाटा को जो स्टोर करते हैं तो उनका जो साइज है वो हमने आपका डिफाइन करना पड़ता है ड्यूरिंग इट्स डिजाइन टाइम। यानी कि जब भी आप किसी भी एरे को आप डिफाइन करोगे तो उसी टाइम उसका जो साइज है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एरे मैंने बता दिया है भी क्या है, ये कलेक्शन ऑफ आइटम है जो स्टोर होंगे कैसे? कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। आइडिया क्या हमारा? टू स्टोर मल्टीपल आइटम ऑफ द सेम टाइप। अब जैसे मेरे यहाँ पे एक एरे है जिसका साइज मैंने दिया है, डिफाइन किया है 10 सपोज, और इसके अंदर मैंने आपके एलिमेंट स्टोर किए हैं। जो हमारा एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 and end with size -1. The memory space which is provided to array is known as indices, or we can also call it index. ठीक है। अब यहाँ पे ये एरे हमारा इसकी लेंथ क्या दी है हमने? 10 दी है। अब देखिए this makes it easier to calculate the position of each element by simply adding an offset to a base value. Base value क्या होती है? हमारे इस एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट आपका स्टोर होगा, उस एलिमेंट का जो एड्रेस होगा, जो एड्रेस आपका फर्स्ट एलिमेंट का होगा, दैट इज नोन एज द बेस वैल्यू ऑफ द एरे। The memory location of the first element of the array. Already I have stated you. Then how we can create a array? Array in Python can be created by importing array module. सबसे पहले हमारा है कि यदि आपने array को डिफाइन करना है अपने पाइथन के अंदर, तो हमने उसकी जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और वो लाइब्रेरी हमारी है array। यानी कि जब भी हम किसी भी एरे को कॉल करेंगे, इंपोर्ट करेंगे अपने पाइथन के अंदर, तो वी विल राइट डाउन द सिंटैक्स एज इंपोर्ट एरे
एज एरे। ये मैंने एक वेरिएबल नेम लिया है जो इसको रिप्रेजेंट करेगा एरे को। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एरे का मॉड्यूल लिखूंगा, फिर डॉट एरे लिखूंगा, उसके बाद डाटा टाइप और उसकी वैल्यू लिस्ट में वहां पे डिफाइन कर दूंगा। जैसे यहाँ पे लिया मैंने ARR, क्योंकि मैंने यहाँ पे एज एरेज को दिया था डॉट एरे, यानी कि ये जो मेरा है ये मेरा आपका एरे मॉड्यूल है, डॉट एरे। इसके बाद मेरा क्या होगा, डाटा टाइप, ये मेरा यहाँ पे डाटा टाइप है, और इसके बाद इसकी ये वैल्यू लिस्ट है। अब आई मेरा जिन्हें स्ट्रिंग टाइप है, तो ये मेरा एक वैल्यू जो डाटा टाइप है वो हो जाएगा इज यूज टू क्रिएट एन एरे विद डाटा टाइप एंड वैल्यू लिस्ट स्पेसिफाइड इन इट्स आर्ग्यूमेंट। और हमने जब फंक्शंस का कंसेप्ट किया था तो फंक्शन के कंसेप्ट में पढ़ा था कि व्हाट आर आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि जो पैरामीटर होते हैं उन पैरामीटर को जो वैल्यू हम पास करते हैं उस पास्ट वैल्यू को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट किया इसको। अब जो क्रिएटेड एरे होगा, अब ये फंक्शन मैंने यूज किया है। ये फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, यदि हम ये फंक्शन यूज नहीं करेंगे तो जो हमारा आउटपुट होगा वो डिफरेंट लाइन में आएगा, लेकिन यदि हमने इस फंक्शन को यूज किया है देन द आउटपुट विल बी इन द सेम लाइन। अब जैसे यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, इसको जो प्रिंट करूंगा तो मेरा जो आउटपुट है वो ऐसे आएगा। लेकिन यदि मैं इस एंड को फंक्शन को यूज नहीं करता तो देन आउटपुट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लुक लाइक दिस वन। अब यहाँ पे मैंने एक एरे लिया है जिसके अंदर मैंने आपके इंटीजर वैल्यूज को स्टोर किया, और फिर मैंने आई इन रेंज 0 to 3। अब 0 क्या हमारी, 0 हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है, 3 हमारी एंड वैल्यू है या स्टॉप वैल्यू है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने स्टेप वैल्यू डिफाइन नहीं की है, और स्टेप वैल्यू जब डिफाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो स्टेप वैल्यू है वो 1 होती है। अब 0 to 3 का मतलब है कि ये 0 से शुरू करेगा और 0, 1 और 2 यानी कि यहां तक वो वैल्यू हमारी प्रिंट करेगा। अब 0 में हमारा इंडेक्स ये है, 1 में ये है और 2 में ये है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो हमारा 0 इंडेक्स होगा उसमें हमारी वैल्यू 1 है, जो हमारा 1 इंडेक्स है उसमें वैल्यू 2 है, और जो इंडेक्स 2 है उसमें वैल्यू 3 है। इसके बाद क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा ए क्या है मेरा, एरे है, और आई क्या है उसका डाटा टाइप है। अब यहाँ पे ए आई एंड का सेम लाइन में आपको प्रिंट दे देगा, यानी आउटपुट आएगा 1, 2, 3, इसको प्रिंट कर देगा। इसके बाद क्या है मेरा, फिर मैंने लिया बी, दूसरा एलिमेंट लिया, दूसरा टाइप लिया, जो मैंने एरे यहाँ पे ले लिया, ये डी है मेरा डाटा टाइप, और ये मेरा आपका वैल्यूज या आप आर्गुमेंट को कह सकते हो। फिर मैंने इसको प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे जो मेरा होगा ये मेरी फ्लोट टाइप की वैल्यूज है सभी, ये मेरी सारी इंटीजर टाइप की वैल्यूज है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एरे कैन स्टोर द सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट वी हैव ए लेट साइज ऑफ एरे बी एन। अब यहाँ पे हमने एक एरे माना है, और अब हम देखते हैं यहाँ पे जो डाटा स्ट्रक्चर होता है, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर मेन जो आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वो होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट एरे। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है कि जब हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं हाउ मेनी टाइम इट विल टेक्स टू कंपाइल दैट डाटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि सपोज करो कि मेरा जो एरे है उसका जो साइज है वो n है। यदि मेरा साइज n है तो जो उसका एक्सेसिंग टाइम है वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ का मतलब है कि दिस इज पॉसिबल बिकॉज एलिमेंट आर स्टोर एट कॉन्टिन्यूअस लोकेशन। अब क्योंकि एलिमेंट मेरे पहला एलिमेंट स्टोर है, उसके बाद ही अगला एलिमेंट स्टोर है, फिर अगला एलिमेंट स्टोर है, इसलिए जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, मेरी ऑर्डर ऑफ n होगी। अब सपोज करो कि मेरे को उसके अंदर से कोई आइटम आपका सर्च करना है, और सर्च जब करना है तो उसके अंदर मैंने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। देन कॉम्प्लेक्सिटी मेरी यदि सीक्वेंशियल सर्च यदि मैं अप्लाई करता हूं तो वो मेरा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी हमारी ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ n क्यों होगी, क्योंकि हो सकता है कि जो मेरा सर्चिंग एलिमेंट है वो आपका लास्ट एलिमेंट हो। यदि लास्ट एलिमेंट मेरा सर्चिंग है तो उसमें मैं क्या करूंगा, जो मेरा एलिमेंट है विच आई वांट टू सर्च, दैट एलिमेंट will be compared with every element of that list, and when the searching element will be equal to the element which we are comparing with,
देन दैट विल बी डिस्प्लेड। अब यहाँ पे इसीलिए हमारा ऑर्डर ऑफ एन जो है वो सीक्वेंशियल सर्च में होगा। ऑर्डर ऑफ log n का मतलब है कि जो बाइनरी सर्च होता है, अब सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि जो बाइनरी सर्च होता है, बाइनरी सर्च के अंदर जो लिस्ट होती है वो ऑलरेडी हमारी सॉर्टेड होती है, ऑलरेडी सॉर्टेड होगी। अब इफ एरे इज सॉर्टेड, ऑलरेडी जब बाइनरी सर्च हमने लिया है तो बाइनरी सर्च का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट है वो हमारे ऑलवेज एक सॉर्टेड मैनर में होंगे। इंसर्शन टाइम हमारा वहां पे क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि उसमें हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये रोस्ट केस हम ले लेते हैं। रोस्ट केस का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट आपके हैं लिस्ट के अंदर वो हमारा कोई भी सॉर्टेड नहीं है, वो ऐसे ही पड़े हैं आपके, वो होता है हमारा रोस्ट केस। और एक होता है बेस्ट केस। बेस्ट केस के अंदर क्या है, जो हमारे एलिमेंट है लिस्ट के वो सभी एक सॉर्टेड मैनर में है, इट मे बी इन असेंडिंग और इट मे बी इन डिसेंडिंग। The roast case occur when insertion happen at the beginning of an array and require shifting all of the element। अब मान लो जब मैंने इंसर्ट किया एलिमेंट, वो मेरा सबसे बड़ी वैल्यू थी और वो मैंने सबसे पहले डाल दी, लेकिन जब मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो इंसर्शन के अंदर क्या है, उस एलिमेंट को मैं उसकी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर लेके जाऊंगा, और जब पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर लेके जाऊंगा तो उस लिस्ट के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी को मैं कंपेयर करूंगा। इसलिए हमारा जो ऑर्डर ऑफ एन जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हमारी आएगी। इसके बाद है डिलीशन टाइम में भी हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ एन। इसमें भी हम मान लेते हैं कि जो रोस्ट केस वहां पे ऑकर हो रहा है और जब डिलीशन हम कर रहे हैं वो हमारा बिगिनिंग ऑफ एन एरे एंड रिक्वायर शिफ्टिंग ऑल ऑफ द एलिमेंट। जो डिलीट हमने किया, सपोज करो कि मेरे पास यहाँ एक लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर मेरे एलिमेंट आपके ऑलरेडी रखे हुए हैं और मैंने क्या किया, इस एलिमेंट को मैंने डिलीट कर दिया। ये एलिमेंट है जो मैं डिलीट कर रहा हूं। जब मैं इस एलिमेंट को डिलीट करूंगा तो ये जो सारे एलिमेंट है ये आगे आगे शिफ्ट होंगे एक एक। अब ये एक एक आगे शिफ्ट होंगे तो इसलिए दैट विल टेक सम टाइम। सो द डिलीशन टाइम, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एरे इज लुक लाइक एज ऑर्डर ऑफ एन। और एन मेरे यहां पे क्या था, एन मेरा एरे का साइज है। इसके बाद हमारा है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, लिंक्ड लिस्ट हमारा एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है इन विच एलिमेंट आर स्टोर्ड एट कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। द एलिमेंट इन ए लिंक्ड लिस्ट आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर। जैसे यहाँ पे हमारा भाई मेरे पास ये जो है एक लिस्ट है जिसमें मेरे पास 4 एलिमेंट है। अब ये जो है ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है और ये इससे जुड़ा हुआ है, और जो लास्ट मेरा एलिमेंट होगा वो किसी से भी नहीं जुड़ा होगा, वो नल होगा। अब यहां पे मेरे पास क्या है, इन विच द एलिमेंट आर नॉट सॉर्टेड एट कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। द एलिमेंट इन ए लिंक्ड लिस्ट आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर। ये मेरा पॉइंटर है जिसको हम नोड बोलते हैं, और इसके जो है 2 आइटम होते हैं, एक डाटा होता है और एक उसका रेफरेंस होता है। ये मेरा डाटा है और ये उसका रेफरेंस है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, उसकी वैल्यू स्टोर होगी और यहाँ पे उसका पॉइंटर होगा, यानी कि एड्रेस होगा जो अगले एलिमेंट को बताएगा कि वो फ्रॉम विच एलिमेंट दैट इज लिंक्ड विद। और इसके बाद मेरा यहाँ पे है जो लिंक आपकी लिंक लिस्ट है, ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है सिंगल लिंक लिस्ट, एक होती है डबल लिंक लिस्ट, और एक होती है मेरी सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, और जब हम आगे जा रहे हैं तो सबसे पहले मेरी है सिंगल लिंक लिस्ट। एज इट्स नेम सजेस्ट, सिंगल लिस्ट क्या होती है हमारी, एवरी नोड स्टोर एड्रेस और रेफरेंस ऑफ द नेक्स्ट नोड। भाई हमारा जो प्रत्येक जो नोड होगा वो स्टोर करेगा किसको, एड्रेस को और रेफरेंस को उस नोड के जिससे हम आगे आपका कनेक्ट होंगे इन लिस्ट, एंड द लास्ट नोड हैज नेक्स्ट एड्रेस और रेफरेंस इज नल। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखा कि ये नोड आपका इससे कनेक्ट हो रहा है, ये नोड इससे हो रहा है और ये नोड इससे हो रहा है। जो मेरा लास्ट नोड है उसका जो पॉइंटर है वो क्या है, नल है, क्योंकि ये हमारा किसी नोड से आगे जुड़ा हुआ नहीं है। अब ये एग्जाम्पल मैंने दिया है कि हमारे यहाँ पे है कि पहला जो है वो दूसरे को पॉइंट कर रहा है, दूसरा तीसरे को पॉइंट कर रहा है, तीसरा चौथे को पॉइंट कर रहा है, लेकिन उसके बाद चौथा जो है उसके आगे कोई नोड नहीं था, इसलिए उसका जो एड्रेस है वो हमारा नल है। इसके बाद है डबल लिंक लिस्ट।
एज इट्स नेम सजेस्ट डबल लिंक हमारे यहाँ पे है, यानी कि इन दिस टाइप ऑफ लिंक लिस्ट देयर आर टू रेफरेंस एसोसिएटेड विद ईच नोड